थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था यूवीआइटिस के बारे में। एज आई सेड बिफोर कि पिछला लेक्चर क्योंकि एपिडेमियोलॉजी का था तो थोड़ा सा इट वाज अ लिटिल बोरिंग, बट आई थिंक थोड़ा सा ये आपके लिए बेहतर होगा. So today we'll be talking about the clinical features and the progression of the uveitis, और उसके साथ associated the complications that can occur as a result of it will also be discussed in it. So moving ahead, अच्छा ये स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें ना इसमें बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ यूवीआइटिस में जो कॉमन फीचर्स है यूवीआइटिस के वो तो आप क्लिनिकली उसको डायग्नोस कर देते हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द कॉज ऑफ uveitis, and that is unfortunately a lot of people are unable to diagnose it properly. They just treat the uveitis but they are unable to know the cause or the causative factors of the uveitis, and as a result the proper management is not being provided to the patient. So before treating the patients, the most important thing is basically a lot of clinical symptoms, signs, diagnostic tests, they are required to have a proper diagnosis. तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना कुछ चीजों को मैं गो थ्रू दोबारा कर रहा हूँ कि इसमें अगेन जिस तरह पहले भी हमने बात की थी, कुछ फैक्टर्स ये हैं और कुछ आगे मैं बताऊंगा कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन obtaining a proper diagnosis. So पहले जो पुरानी बात भी हमने रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा कि इज बेसिकली द ऑनसेट के जो जो सिम्टम्स हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंटेशन है आया, वो ऑनसेट इज सडन और इंसिडियस है. उसका ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड था, लेस देन 3 मंथ्स, या परसिस्टेंट है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है मोर देन 3 मंथ्स से. और इसी तरह देन वी कैन डिवाइड इट वेदर इट्स एन acute, it's a recurrent, or it's a chronic. Acute is one which in which there is a sudden onset and limited duration, whereas recurrent is repeated episodes, inactive periods, more than 3 months of treatment, whereas persistent relapse in less than 3 months of treatment. ठीक, ये पहले तो इंपॉर्टेंट हो गया कि acute क्या है, recurrent क्या है, chronic क्या है. अब डायग्नोसिस कोई भी यूवीआइटिस के लिए जो क्लिनिकल फीचर्स है, अब हम एक ब्रॉड टर्म जैसे मैंने कहा कि यूवीआइटिस इज you could say inflammation of whole of the uveal tract, but you have multiple causes that can cause uveitis. So we have some symptoms and signs which are present in all of the uveitis. Some are specific for specific diseases, and then there is some systemic also association also present in some patients which can lead us to a proper diagnosis. तो diagnosis के लिए हम दो methods basically इस्तेमाल करते हैं, clinical and etiological. अब I will be mostly concerned with the clinical diagnosis क्योंकि etiological में you have diagnostic tests in it और वो बहुत डिटेल में चले जाएगा and it's going to be a little difficult for you. I'll be more emphasizing on the clinical diagnosis of uveitis. Otherwise हमारा basically ये बताना मकसद ये था कि we have two basically कहने के methods हैं जिसमें clinical है और etiological है. So clinical diagnosis is uveitis starts with the first step of the most important step I would consider is the history. A proper elaborative history is the utmost thing that is required to have a proper diagnosis in uveitis. Then we go for a systemic examination and then the ocular examination. So we have a proper history, systemic history and examination, and ocular examination to reach the final clinical conclusion. Now इसमें इसलिए इसको डिवाइड किया कि elaborate history में आपकी सिर्फ ocular history important नहीं है, उसमें systemic हिस्ट्री और बाकी जो चीजों की हिस्ट्री है वो भी इंपॉर्टेंट, आगे मैं बताऊंगा. इसी तरह सिस्टमिक एग्जामिनेशन में भी कई चीजें ऐसी हैं और उन सिस्टमिक एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली देन वी गो फॉर ऑकुलर एग्जामिनेशन. जो यूवीआइटिस की एग्जामिनेशन है वो एक कॉमन चीज है, वो जिसमें मैंने कहा वो एक डिफरेंट एंटिटी, और सिस्टमिक एसोसिएशन जो है सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे जो आपकी डायग्नोसिस आपकी डेवलप हो रही है उसके अकॉर्डिंगली फिर यूवीआइटिस के अंदर जो फर्दर फाइंडिंग्स आपने लोकलाइज करनी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. Etiological diagnosis जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? It is basically again लिस्ट किया है इसमें कि differential diagnosis different आपने जो different अपने बना लिए हैं in order to decide on the laboratory investigations to rule out or rule in the possible etiology. So etiological diagnosis में आपकी इन्हीं सारी clinical findings, ocular examination, physical examination की बुना पे आपने जो you have made a differential diagnosis, then you go for the laboratory investigations according to your differential diagnosis, and this is how we go for the etiological diagnosis. So
इसको अगेन अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जी द हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, देन वी गो फॉर द साइंस ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल ऑफ द होल बॉडी एंड द ocular एग्जामिनेशन, then anatomical classification, associated factors which can also be present, then we go for the lab studies, and finally we reach an etiology or जो भी causative उसका था, cause थी जो uveitis की, and finally the treatment of the uveitis. जो ट्रीटमेंट है और या मैनेजमेंट है, इट शुड बी तीन चीजों पे आपका है. You have to control the signs and symptoms of the disease, prevent ophthalmic complications, and identify any systemic underlying etiology and properly managing it. तो ये तीन चीजें आपने यूवेटिस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि उसमें आपने देखना है. एंटीरियर यूवेटिस जिस हमने बात की इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द यूवेटिस. एंटीरियर यूवेटिस की हमने बात की थी, इट इज बेसिकली आयरिस की इन्फ्लेमेशन, आयराइटिस. इट मे बी सिली बॉडी, थोड़ा सा हद तक उसको सिक्लाइटिस तो आराइडोसिक्लाइटिस हम कह सकते हैं. तो बेसिकली एंटीरियर चैम्बर के अंदर जो साइंस और सिम्पटम्स आपके प्रेजेंट होंगे वो आपकी एंटीरियर यूवेटिस है, एंड इट इज मोस्ट कॉमन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन अबाउट 50 to 60% cases of all uveitis. Estimated 30 to 52% of anterior uveitis has an underlying systemic etiology. The clinical signs associated with anterior uveitis manifested in the conjunctiva, the cornea, the anterior chamber and the iris. तो ये वो जगह हैं कि जहाँ पे आपके anterior uveitis अगर आप कहते हैं कि ये diagnose करें कि this is anterior uveitis, so you must have some findings in these structures at least, कि conjunctiva, cornea, AC या anterior chamber and iris के अंदर. Intermediate uveitis जो है वो inflammation है localized to the vitreous and the peripheral retina. It may be initially associated with development of systemic disease such as multiple sclerosis या sarcoidosis. It can account up to 25% of the uveitic patients. Pars planitis is basically inflammation of the anterior part of the vitreous and the retina and choroid and ciliary body mixture, or you could say the mid periphery of the eyeball, and is a part of the or a subset of the intermediate uveitis, and it is we diagnose it due to the presence of white exudates within the vitreous in the base or in the lower part, which are known as snowbanks over the pars plana, or by the presence of aggregates of inflammatory cells in the vitreous which are known as snowballs. ये आगे मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा. And posterior uveitis is basically inflammation of the retina and the choroid. The description includes it may be either a simple focal lesion involving the retina, which is known as focal retinitis. It may be a focal lesion of the choroid, the focal choroiditis. Multiple lesions can be present and they are known as the multifocal retinitis and multifocal choroiditis. They may present as a group of disorders having diffuse choroidal inflammation as a common underlying pathology. ठीक है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और इसमें क्या कोरोनल इन्फ्लेमेशन के साथ प्रेजेंट करेगा. One can group the various causative factors of posterior uveitis into infectious, inflammatory, or neoplastic. So when you are talking about posterior uveitis, choroiditis या retinitis, उसकी mainly तीन causes में से हमने इसको evaluate करना होता है, which are infectious, inflammatory या neoplastic. सो अप्रोच क्या करनी है, जैसे मैंने कहा एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे थे कि एग्जामिनेशन से पहले आपकी जो इंपॉर्टेंट मोस्ट या utmost थिंग है दैट इज द हिस्ट्री. A proper history and examination is very important in order to attain or achieve a proper diagnosis. So present illness में आपने क्या देखना है, उससे पूछना है क्या कि onset कब से है, course, the symptoms, laterality and the treatment. Past ocular history में any previous episodes, any previous therapy or treatment, any response, and previous antecedent ocular trauma or surgery. मेडिकल हिस्ट्री में सिस्टमिक इलनेस, स्पेशली जो आपके जो कॉमन डिजीजेज हैं जिनके साथ आपका यूवेटिस एंटीरियर या पोस्टीरियर या इंटरमीडिएट होता है, उनको आपने स्पेशली यू हैव टू कीप देम इन माइंड, सच एज सार्कोइडोसिस, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एड्स, टीबी, सिफिलिस and medications of and some other immunosuppressive diseases, or especially immunosuppressive आपकी जो medicines हैं they also. Social history में you get dietary habits, sexual history or any IV or intravenous drug abuse,
Demographic data, you must know the age, race, and the sex of the patient. The family history consists of medical illness, contagious disease such as TB, maternal infections, or any history of uveitis within the family members. Then we go for a general examination of the patient या general अगर आपका कहना है कि physical examination में उसको जो आप patient को जो you go there उसमें आपने क्या देखना है कि you have to see whether any history of fever, any history of weight loss, malaise और night sweats. और उसके बाद सिस्टेमिक के अंदर डिफरेंट आपके जो पार्ट्स हैं उसमें अपने सिस्टम्स को अपने रूल आउट करना है उसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स हैं जो स्पेशली यूवीआइटिस में प्रेजेंट होती हैं जिसमें रोमाटोलॉजिकल डर्मेटोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल जीआई रेस्पिरेटरी एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उनके साथ रोमाटोलॉजिकल में आपने आर्थ्रेल्जिया लोअर बैक पेन जॉइंट स्टिफनेस इसके बारे में पता करना है dermatological में any rashes, sores, alopecia, vitiligo, poliosis, any tick or insect bites. Neurological में tinnitus, headache, meningism, paresthesias, weakness या paralysis. GIT के अंदर diarrhea, bloody stools, oral aphthous ulcers. Respiratory में shortness of breath, cough, sputum production और genitourinary में dysuria, discharge, genital ulcers या planitis. So ये systemic एक patient जो भी uveitis का आ रहा है regardless the age, regardless the first episode or recurrent or a chronic patient, you have to अगर chronic है फिर तो अमूमन ये chances है कि या recurrent में भी आपने history में ये सारी चीजें ली हैं but अगर पहली दफा आपके पास आ रहा है तो ये सारे एक इसमें से सवाल जवाब आपने patient मतलब इन सवाल जवाब में से patient को गुजारना है अभी एक हम examination मतलब वो अगर अगर diagnose जब हम कर लेंगे कि uveitis है तो हमने etiology की चूंकि हमने basically we have to go to the etiology so that is why we have to ask the patients to all of these questions. अब अप्रोच हमने क्या करनी है कि हमें अगेन नाउ कमिंग बैक टू द uveitis के जब हम बात कर रहे हैं तो देयर आर डिफरेंट specific pattern of symptoms which are present in uveitis जिसको हमने you have to keep that in mind. Some are present in both in all of the anterior, intermediate and posterior uveitis. Some are present in one or some are present in two. So ये चीजों का अगर आप रखेंगे कि ये चीज present है ये नहीं है so you can आप इसका एक डायग्नोसिस इस तरह से बना सकते हैं कि एंटीरियर यूवेइटिस है ये इंटरमीडिएट है या ये पोस्टीरियर है और उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन या फर्दर सिस्टमिक एसोसिएशन जो हो सकते हैं पॉसिबल उसकी तरफ हम जाते हैं सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एंटीरियर तो द कॉमन सिम्टम्स जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है बल्कि एंटीरियर यूवेइटिस का सबसे जो कॉमन सिम्टम व्हिच आई हैव सीन इन द पेशेंट्स इज बेसिकली फोटोफोबिया जो मेन कंप्लेंट पेशेंट करेगा कि जी रोशनी चुभती है मैं बाहर धूप में जाता हूँ तो रोशनी बहुत सख्त चुभती है और मतलब मुझे देखा नहीं जाता आंख में मतलब ऐसे दर्द शुरू हो जाती है जब मेरी आंख में रोशनी पड़ती है तो ये बड़े कॉमन सिम्टम है दैट इज प्रेजेंट इन यूवेइटिस एंड इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ आपका रोशनी पड़ने से क्या होता है प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करता है प्यूपल जो है इज बेसिकली आइरिस का एक पार्ट है और आइरिस की बेसिकली मसल्स हैं जो कि कंट्रैक्ट करते हैं और उसके लिमिट करते हैं लाइट को एंटर होने के लिए जब उसकी ये मूवमेंट होती है चूंकि ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वो दैट बिकम्स वेरी पेनफुल रेडनेस वाटरिंग पेन डिक्रीज विजन और सम पेशेंट जो कि बहुत क्रॉनिक होते हैं उसमें बेसिकली ये सिम्टोमेटिक भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरमीडिएट में यू हैव फ्लोटर्स फोटोप्सिया एंड अगेन डिक्रीज विजुअल एक्विटी एंड पोस्टीरियर के अंदर विजुअल एक्विटी डिक्रीज फोटोप्सिया फ्लोटर सो अब आप इसमें देखें कि विजुअल एक्विटी डिक्रीज में भी प्रेजेंट इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ यूवेइटिस और जो इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर है उसमें पेन या वाटरिंग या रेडनेस जो है उसके चांसेस मिनिमल है जबकि इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर के अंदर देखें जो कॉमन चीज है दैट इज द फ्लोटर्स एंड द फोटोप्सिया अब फोटोप्सिया क्या है वो सारा भी मैं आगे बताता हूँ सो in anterior uveitis AU is basically anterior uveitis ocular pain is can be present photophobia very common and very likely to be present in anterior uveitis blurring of vision, yes, it is present. Redness of the eye and watering of the eye. ये सारे anterior uveitis के अंदर possibilities and symptoms presence की. Photopsia is basically flashes of light. अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो आपको नजर आ रहा है photopsia में मतलब categorically इसी तरह महसूस होता है कि when you're looking at something, even if it's dark, you there appears to be a flash of light coming from any quadrant and going towards any quadrant. अगर ये बार बार हो रहा है तो फिर देर आर चांसेस उसमें और भी कई पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं बट अगेन फोटोप्सिया कैन बी प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर यूवेइटिस
फ्लोटर्स फ्लोटर्स इज अ वेरी कॉमन थिंग, जो कि मेरे ख्याल है हर दूसरा या तीसरा बंदा या ये कंप्लेंट के साथ आता है कि जी मुझे आंख के अंदर ब्लू बैकग्राउंड या ऑफ वाइट या लाइट बैकग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की शेप्स के फ्लोटर जो है वो फील होते हैं, जो कि घूम रहे होते हैं। समटाइम्स इट्स लाइक अ स्नेक, समटाइम्स मक्खी मच्छर की शक्ल वो बताते हैं जी, इस तरह की। समटाइम्स के वो कहा जाता है कि जी कुछ छोटा सा दाना है और जहां मैं देखूं उस तरफ हो जाता है, वो घूमता फिरता रहता है। ज्यादातर ये इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि आपकी विट्रस की सनरेसिस या विट्रस जो होता है, जो कि नॉर्मली विट्रस जली है, लेकिन एज के साथ विट्रस जो है वो सैनरेटिक हो जाता है, और विट्रस की सैनरेसिस या लिक्विफिकेशन की वजह से ये पार्टिकल्स ऑलरेडी जो प्रेजेंट थे आई के अंदर या उसके अंदर अपना विट्रस में, ये फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं। और वो फ्लोट आई मूवमेंट के साथ उनकी जो फ्लोट है वो आपको कई दफा अगर विजुअल एक्सेस के सामने से गुजरते हैं, they become apparent to you and you can appreciate them, और उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट अगर बाकी सिम्टम्स आपके प्रेजेंट हैं फॉर यूबीआइटिस और साथ में ये भी आ रहा है, फिर इसकी सिग्निफिकेंस जो है और प्लस हो जाती है। सो इट मे बी प्रेजेंट इन बोथ इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर यूबीआइटिस। द डिविजन इज कॉमन इन ऑल थ्री। स्कोटोमा posterior uveitis, क्योंकि स्कोटोमा का मतलब ये है कि आपका वी आर टॉकिंग अबाउट इन posterior uveitis the inflammation of the choroid or the retina. So if the retina and choroid is inflamed and it's not properly functioning, और it's a very big lesion, suppose करते हैं एक ही lesion है, वो बड़ी सी lesion है, उस lesion के ऊपर जो image बन रहा है वो image आपका clarity से नहीं बनेगा, वो perceive नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया सारा रेटिना का या choroid का जो है वो inflamed है। प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से उस एरिया में आपका वो स्कोटोमा, अगर इफ इट इज अ वेरी बिग एरिया दैट इज बीइंग इन्वॉल्वड, देन इवन द पर्सन कैन हिमसेल्फ appreciate that the appreciate the presence of the scotoma। अगर कोई मल्टीफोकल या छोटी छोटी लीजन्स हैं तो कई दफा वो स्किप हो जाती हैं। देयर डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट जिनके ऊपर वी कैन डायग्नोस इट प्रॉपर्ली एंड वी कैन इवैल्यूएट कि ये स्कोटोमा प्रेजेंट है। अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट फॉर पेशेंट हिमसेल्फ टू पिक अप कि भी ये मुझे इस क्वाड्रेंट में या छोटी छोटी जो लीजन्स हैं उनमें नजर नहीं आ रहा। बट इफ यू हैव अ सिंगल large lesion, then it is quite possible that even the patient or the person can himself identify that scotoma। द साइंस ऑफ यूबीआइटिस, ये तो सिम्टम्स थे जो कि पेशेंट खुद आके कहते हैं जी मुझे अगर मैं यहाँ सीधा देख रहा हूँ जैसे स्कोटोमा के एक देख रहा हूँ तो एक साइड पे मुझे लगता है काला सा धब्बा या एबनॉर्मल या पोस्टर नजर आता है, रोशनी मुझे धूप में चुभन होती है, आंख मेरी लाल होगी या नजर मुझे कम आ रही है, ये तो सिम्टम्स है। When you go for the signs are basically the things the patient himself doesn't know, but we have to rule out कि ये जो whether these things are present or not. So the signs are present in the conjunctiva, the cornea, the anterior chamber, and the iris in the anterior uveitis, and they are present in the pars plana and retina or the choroid in the posterior uveitis. And it is as a result of direct inflammation in the anterior segment that results in the breakdown of the blood aqueous barrier. So जो mainly signs आपको नजर आ रहे हैं conjunctiva, cornea या AC और iris के ऊपर, they are as a result of the breakdown of the blood aqueous barrier। क्या signs हैं वो? उसमें अगर देखें हम साइंस से पहले ये कि पेशेंट जब आपका एक तो होता है कि जनरल एग्जामिनेशन, कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो थ्रू अ जनरल एग्जामिनेशन, रिगार्डलेस वो आपको कौन सी भी कंप्लेंट कर रहा है। आपको कहता है ये मुझे पेन है, वाटरिंग है, फोटोफोबिया है, वो जो भी कह रहा है, लेकिन ये एक कुछ आपकी जो बेसिक एग्जामिनेशन ऑकुलर है उनमें से तो आपने उसको सारा लाजमी गुजारना है। ठीक है जी। वो क्या है जी कि इसमें आपने विजुअल एक्विटी, यू हैव टू गो डू अ प्रॉपर विजुअल एक्विटी ऑफ द पेशेंट, slit lamp examination, intraocular pressure, and then we have a dilated fundus examination। और अगर इंट्राओकुलर प्रेशर इज एलिवेटेड तो फिर वी गो फॉर अ गोनियोस्कोपी, और उसमें हमें बहुत सारी क्लिनिकल कोर्स और उसकी एक्यूट है या क्रॉनिक है डिजीज, उसके बारे में हमें आइडिया हो सकता है। अब साइंस में जो हम कंजक्टिवा से आगे अंदर की तरफ जाते हैं कि कंजक्टिवा के ऊपर क्या साइंस होंगे। कंजक्टिवा में जो साइंस है उसको हम सिलरी कंजेशन रेडनेस, जो है जो रेडनेस हमें कंजक्टिवा में नजर आ रही होती है उसको हम सिलरी या सर्कम सिलरी कंजेशन कहते हैं। वो क्या है? इन आइराइडोसेक्लाइटिस द enlargement of the episcleral vessels around the limbus is seen in dark red color। There may be diffuse congestion of the bulbar conjunctival vessels or the circumcorneal injection। तो आपके ये जो वेसल्स आपको लार्ज बल्बर वेसल्स नजर आ रही हैं ये, एंड दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिम्बस, दे आर बेसिकली द limbal vessel, they are episcleral vessels which have due to the inflammation they are enlarged in size so that inflammatory cells could be localized or directed towards that specific area।
देन वी हैव द केराटिन प्रेसिपिटेट्स, पिछली दफा भी बताया था कि केराटिन प्रेसिपिटेट्स क्या हैं, थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं कि द मोस्ट कॉमन कॉर्नियल फाइंडिंग, कॉर्निया के ऊपर आगे कंजक्टिवा से वी गोइंग बैकवर्ड फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर, देन वी हैव कंजक्टिवा बताया, कॉर्निया, देन वी गो टू द एसी, फिर आइरिस, इस तरह। तो मोस्ट कॉमन कॉर्नियल फाइंडिंग क्या है, वो केराटिन प्रेसिपिटेट्स है। और ये है क्या कि जी दे आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स that accumulate on the corneal endothelium. Their fine dust-like capes may be seen in perpendicular linear pattern, and the presence of any keratin precipitate morphology larger in size than the dust designates it as a granulomatous inflammation. So the most important thing is that आपने ये देखना है इसके अंदर कि आपकी जो प्रेजेंस है इसमें आ रहा है वो इसकी साइज और उसकी शेप और इसकी जो प्रेजेंस है उसको आपने इसको कोरिलेट करना है सारी चीजों को आपस में, कि जो अगर तो स्मॉल साइज हैं, छोटे छोटे हैं, कोलेस कर रहे हैं आपस में या अलग इंडिपेंडेंटली आपको नजर आ रहे हैं, तो वो जो है वो यू कॉल देम एज simple keratin precipitates, but they are in larger in size and they are fluffy in nature. They coalesce with each other, and they are basically granulomatous keratin precipitates. उसके बाद हम चूंकि हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं ना, ब्लड एक्वस बैरियर जो है, जो वेसल्स का ब्लड एक्वस बैरियर है, आपकी जो भी इसकी आयरिस की जो वेसल्स हैं, वो चूंकि ब्लड एक्वस बैरियर ब्रेक डाउन हो चुका होता है, तो क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो आपके एंटीरियर चैम्बर में आते हैं। एंटीरियर चैम्बर एज वी नो इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ एक्वस, और वो फ्लूइड है सारा। उस फ्लूइड के अंदर आपका चूंकि जो इफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर प्रेजेंट, दे कैन बी सीन क्लिनिकली विद द हेल्प ऑफ अ स्लिट लैम्प। सो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कैसे देखना है। सो द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल्स विद इन द इंटीरियर चैम्बर, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है हम इसको कहते हैं फ्लेयर, एक चीज है जिसको हम कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ द सेल्स देमसेल्फ एज द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो फ्लेयर क्या है? फ्लेयर एक तरह से आप ये समझ लें कि एक फॉग में अगर आप खड़े हैं, यू यूज अ टॉर्च लाइट इन दैट फॉग, तो यू आपको वहां पे एक थोड़ा सा डस्टी सी एक अपीयरेंस जो है वो नजर आती है। और फॉग जो है, जो हमारे सेंसर्स भी होते हैं, या हम अगर देखते हैं कि ये फॉग की डेंसिटी कितनी है, वो डिपेंड करता है कि हम कितना डिस्टेंस तक उस किसी भी चीज को हम देख सकते हैं, विजिबिलिटी कितनी है हमारी। इसी तरह हम इसको भी जो मेजर करते हैं वो विजिबिलिटी पे डिपेंडेंट है कि कितने ज्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स वो फ्लोट कर रहे हैं इन द एंटीरियर चैम्बर एक्वस के अंदर, कि जिसकी वजह से जो आगे उसके स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उनकी क्लैरिटी कितनी जो है रह जाती है या खत्म हो जाती है। अगर वो क्लैरिटी मौजूद है लेकिन हमें वो सेल्स वगैरह भी मतलब नजर आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेडिंग में वो कम है। लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है और हमें आयरस या उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नजर नहीं आ रहे, वो इतना डेंस हो चुका हुआ है, तो अगेन हम उसी हिसाब से वो कहते हैं कि ये बहुत डेंस किस्म का फ्लेयर है। So it is basically है क्या कि जी breakdown of the blood aqueous barrier causes protein exudations in the anterior chamber. Increased protein concentration of the aqueous humor causes an optical phenomena called the flare या Tyndall effect। ये आप छोटे छोटे आपको जो पार्टिकल सारे नजर आ रहे हैं, इसकी हम जो डेंसिटी है या इसके हम जो कहते हैं ग्रेडिंग है, वो हम करते हैं कि हम इसके थ्रू अंदर जो आई बॉल के बाकी स्ट्रक्चर सच एज द आइरिस है, उसकी डिटेल्स को हम किस हद तक जो है एग्जामिन कर सकते हैं। सेल्स क्या होते हैं? दे आर प्राइमरी लिम्फोसाइट्स in most episodes of the anterior uveitis, but a significant number of neutrophils may be present early in the course of the disease। अब इसमें आप देखें कि एक दो ये छोटे छोटे आपको जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं इधर उधर आपको घूमते हुए, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ये सेल्स है। इसकी मेजरमेंट के लिए हम बेसिकली एक एक्सक्यूज मी, इसके लिए हम करते हैं कि हम जो स्लिट है, ये स्लिट जो हम लाइट बीम जो एंटर हो रही है, इसको मेजर करते हैं कि इसको एक 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर साइज में ले आते हैं। वहां पे लाने के बाद उसके और आयरस के दरमियान में जो आपकी लाइट बीम अंदर जा रही है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पार्टिकल्स को काउंट करके वी कैन ग्रेड देम एज फ्रॉम ग्रेड 0 टू ग्रेड 4 बीइंग द मैक्सिमम। तो हम इस तरह उसको काउंट करते हैं। So this is a video of how you examine the flare and the cells within the eyeball. तो अभी आप ये देखें कि ये स्लिट बीम को पहले छोटा कर रहे हैं, इसको ऑलमोस्ट 1 बाय 1 मिलीमीटर के साइज का हमने कर दिया है,
और उसके अंदर से जब आप देखेंगे वो पार्टिकल्स आपको ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स ये फ्लोट करते हुए ये जो नज़र आ रहे हैं कि ये जो फ्लोट करते हुए पार्टिकल्स आपको बीच में नज़र आते हैं, दे आर बेसिकली द सेल्स। सो अमाउंट ऑफ सेल्स इन दैट बीम जो हम देख रहे थे उसमें ये इस बीम के अंदर जो अमाउंट ऑफ सेल्स है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना है ग्रेडिंग में। अब ये अब फ्लेयर ये देखें ये भी पार्टिकल्स हैं लेकिन अगेन इसके अकॉर्डिंगली हमने ये देखना है कि आयरिस की डिटेल्स हमें कितनी नजर आती है। Here you can appreciate the condensation of these particles on the endothelium और ये केराटिन precipitates हैं और नीचे अगर आप देखें एक वाइट लाइन छोटी सी जो नजर आ रही है ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ गया हुआ है एंड दे आर नोन एज द हाइपोपियन। सो ये हाईएस्ट हायर मैग्निफिकेशन में भी दिखा रहे हैं कि छोटे छोटे भी आपको एंडोथेलियम के ऊपर पार्टिकल्स जो एडहेरेंट जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे और ये सारा ये केराटिन प्रेसिपिटेट्स जो एंटीरियर चैम्बर में फ्लोट कर रहे हैं ये आपको जो छोटे पार्टिकल्स व्हाइट डॉट डॉट नजर आ रहे थे ये एंडोथेलियम के ऊपर ये केराटिन प्रेसिपिटेट्स हैं। जो बाहर नजर आ रहा था जो एंटीरियर चैम्बर में फ्लोट करते हुए नजर आ रहे थे वो बेसिकली होते हैं। सो ग्रेडिंग ऑफ द सेल्स एंड फ्लेयर क्या है कि जी अब ये फ्लेयर के लिए ग्रेडिंग है और ये इसमें ग्रेडिंग ऑफ सेल्स। जीरो हम कहते हैं कोई है ही नहीं, ठीक है जी। वन में फेंट क्या है, फेंट का मतलब है कि फ्लेयर इतनी फेंट है कि आपको अप्रिशिएट हो रही है बट स्ट्रक्चर ऑफ द आइरिस कैन आल्सो बी अप्रिशिएटेड। मॉडरेट में आपको ये है कि लेंस और आइरिस की डिटेल्स जो है उसमें जो रिजेस हैं आइरिस के अंदर स्पेशली वो आपको क्लैरिटी के साथ अब नजर नहीं आ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट। ये ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 में ये है कि मार्क्ड आइरिस और लेंस की डिटेल जो है वो एब्सेंट हो जाती है, वो इतना डेंस किस्म की वो फॉग या उसके पार्टिकल्स की इतनी डेंसिटी ज्यादा है कि यू कैन नॉट अप्रिशिएट इट। और ग्रेड 4 में ये है कि इतनी ज्यादा डेंसिटी हो गई है कि वो मेम्ब्रेन्स बन गई हुई हैं, वो थिक या थिन मेम्ब्रेन्स हैं एंटीरियर चैम्बर में आपस में कोलेस करके वो मेम्ब्रेन बन गई है जो कि आइरिस को बिल्कुल उन्होंने हाइड कर दिया है उसके अंदर। इसी तरह अमाउंट ऑफ सेल्स जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है उस 1/1 मिलीमीटर की स्लिट बीम के अंदर। ये स्लिट बीम जो 1/1 मिलीमीटर की बनाई है उसके अंदर हमने देखना है। सो हम कहते हैं कि जी अगर ग्रेडिंग में ये देख रहे हैं कि ग्रेड 0 या इसको हम कहते हैं कि जी ओकेजनल सेल्स, तो वो 1 to 5 सेल्स अगर आ रहे हैं लेस देन 1 है तो वो आपको उसको हम कहते हैं ग्रेड 0 है। इसको ग्रेड 1 को हम कहते हैं कि अगर 6 to 15 सेल्स आते हैं उस 1 मिलीमीटर की बीम के अंदर। ग्रेड 2 हम कहते हैं कि अगर 16 से 25 काउंट कर, यू हैव टू फिजिकली काउंट द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ जो सेल्स पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट 1/1 मिलीमीटर बीम। ग्रेड 3 में 26 से 50 है और ग्रेड 4 में जो है मोर देन 50 अगर प्रेजेंट है तो हम उसको फिर ग्रेड 4 या मैक्सिमम कहते हैं या बड़ा ज्यादा इन्फ्लेम्ड है। So this is how you basically grade the cells and the flare within the anterior chamber. अब यही सेल्स और फ्लेयर अगर इनकी क्वांटिटी एक लिमिट से ज्यादा हो जाए या आपकी जो सेल्स इन्फ्लेमेटरी हैं ग्रैनुलोमेटस सेल्स ज्यादा हैं क्योंकि दे आर वेरी थिक एंड लार्ज इन साइज, तो कोलेक्स विद ईच अदर, they combine with each other and then they as a result of the gravity they fall downwards. अब ये जब fall downwards they collect in the lower part of the anterior chamber and this white material present within the anterior chamber in the lower part is known as a hypopyon. Hypopyon is basically an exceedingly high amount of leukocytes in the aqueous. They precipitate with gravity and form an accumulation in the anterior chamber angle that is referred to as a hypopyon. आयरिस में क्या होगा, आयरिस बजाते खुद में नोड्यूल्स कैन बी प्रेजेंट। ये अगर आप देखेंगे छोटे छोटे आपको ये नोड्यूल्स हैं, अगेन दीज आर इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स जो आयरिस स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं। they are accumulation of the leukocytes on the anterior part of the iris and they represent granulomatous uveitis जो आपका so nodular presence in the iris is a granulomatous granuloma हमें पता है जिसका sarcoidosis tuberculosis ये granulomatous inflammations है। iris के nodules can be present on the pupillary border और इसको हम कहते हैं कोपी नोड्यूल। और अगर ये बाहर हैं और आइरिस्ट्रोमा के अंदर हैं तो देन दे आर नोन एज द बुसाका नोड्यूल। तो दो तरह के आपके कोपी नोड्यूल्स एंड बुसाका नोड्यूल्स जो हैं दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द आइरिस। इसके अलावा आइरिस के अंदर क्या, चूंकि आपके कोपी नोड्यूल आइरिस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन्स बन रही है और ये आइरिस के पार्टिकल्स भी निकल निकल रहे हैं, जो आइरिस का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो भी इन्फ्लेम्ड है तो वो स्टिकी हो जाता है। वो स्टिकी होने की वजह से क्या होता है कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस जो है उसके साथ वो एडहेरेंट होना शुरू होता है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। तो जहां जहां क्वाड्रेंट में वो एडहेरेंट होता जाता है तो आप देखेंगे फ्लावर टाइप जो इसकी अपीयरेंस है वो इस वजह से है कि जो एरिया एडहेरेंट नहीं है वो उस एरिया में आइरिस जो जो प्यूपल है वो अपना रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, उसका साइज छोटा बड़ा होगा। बट जहां पे वो एडहेरेंट हो गया हुआ है
जिन जिन एरियाज में वो एडहेरेंट हो चुका है, तो वहां उस एरिया में प्यूपल की जो मूवमेंट है वो अब एब्सेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको ये जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मल प्यूपल शेप होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये दिस इज पोस्टीरियर साइनिकी. So posterior synecdoche are adhesions of the iris and the anterior lens that generally develop from the coping nodules or a thickened iris due to the inflammation. Localized, diffuse और sectoral iris atrophy में also अगर iris atrophy अब क्या inflammation इतनी ज्यादा होती है कि जो structure है वो itself डैमेज होना शुरू हो जाएंगे. अगर आप ये देखेंगे ये थोड़ा सा पिगमेंटेड है, यहाँ पे एट्रोफी या वाइटिश होना शुरू हो गया क्योंकि ये एरिया डैमेज हो चुका है. और ये अमूमन जो ये ट्रॉफिक एरियाज वाले जो आयरसेस होते हैं दे रिप्रेजेंट कि ये क्रॉनिक या रिकरेंट यूवेइटिस है इस पेशेंट में. अक्यूट में इस तरह की प्रेजेंटेशन जो है ना एट्रोफी की नहीं हो सकती, मतलब इसके लिए टाइम चाहिए. आगे चलें जी, तो इंट्राओकुलर प्रेशर वो आपने मेजर करना है. क्यों? क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर में अच्छा तीनों पॉसिबिलिटीज है. इंट्राओकुलर प्रेशर कैन बी लो, can be high, or can be normal. So the clinical course and the number of inflammatory cells affecting the outflow of the aqueous humor वो इस पे dependent है कि इंट्राओकुलर प्रेशर कितना आ रहा है. अर्ली स्टेजेस के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या है, साइक्लाइटिस भी होगा. साइक्लाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिलरी बॉडी. सिलरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन से क्या होगा कि सिलरी बॉडी इन्फ्लेम्ड होने की वजह से अब अपना काम जो है वो कम हो जाएगा. जब वो प्रोडक्शन कम कर देगी एक्वस की तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा. अगर सिक्लाइटिस नहीं है, सिंपल आइराइटिस चल रहा है तो फिर डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर नॉर्मल चलता रहेगा. अगर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो गया हुआ है तो प्रेशर इंक्रीज की कई पॉसिबिलिटीज हैं. अक्यूट यूवेइटिस में प्रेशर जो इंक्रीज होता है वो इसलिए होता है कि आपका यहाँ पे ड्रेन जो होता है, आपका जो एक्वस है इट ड्रेन्स थ्रू द ट्रेबिकुलर मेशवर्क. जब आई बॉल इन्फ्लेम्ड हो रही है, आराइडोसिक्लाइटिस हो रहा है, तो ट्रेबिकुलर मेशवर्क भी इन्फ्लेम्ड हो जाएगा. अब ट्रेबिकुलर मेशवर्क बेसिकली क्या है, वो जंक्शन है, मुख्तलिफ आपके चैनल्स हैं जिसमें से उसमें से गुजर रहा है एक्वस. अब वो एरिया जब ट्रेबिकुलाइटिस होगा या इन्फ्लेमेशन होगी ट्रेबिकुलर मेशवर्क की तो क्या होगा कि ये एरिया या चैनल्स जो हैं ये भी ब्लॉक हो जाएंगी या इनका जो पैसेज है वो उसमें से कम एक्वस गुजरेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नॉर्मल हो ही जा रही है, ड्रेनेज प्रॉपर हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से आपका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. ये तो अर्ली स्टेज में. क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है कि रिपीटेड इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जो आयरस बार बार रिपीटेड एडहेजंस जो बनती जाती हैं, क्योंकि आयरस एक्वस जो है ना, ये आप अगर देखें तो सिलरी बॉडी से एक्वस बना, यहाँ से आया प्यूपल में से बाहर आया, बाहर आके यहाँ से निकला. अब मुसलसल इन्फ्लेमेशन की वजह से या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये एंटीरियर चैम्बर अपना ये जो आयरस प्यूपल है, प्यूपल या पोस्टीरियर सैनिकी बनने की वजह से लेंस के साथ जो स्टिक हो जाएगा, आयरस इतना ज्यादा स्टिक हो जाएगा कि एक्वस को प्रॉपर्ली वो एंटीरियर साइड पे नहीं आने देगा. या ये कि इन्फ्लेमेशन जो आपके एंटीरियर चैम्बर जहाँ से ड्रेन हो रहा है ट्रेबिकुलर एरियाज में, वहां पे ड्रेनेज का प्रोसेस जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा ड्यू टू अगेन एंटीरियर साइनिकी बनने की वजह से कि यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन बन जाने की वजह से वहां से वो एंटीरियरली भी जो है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा. सो एलिवेटेड आईओपी इन एसी और ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ द, ये सारा वही जो मैंने भी बताया. ठीक है जी. बस थोड़ा सा रह गया है. कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट क्या है कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड पिगमेंट डिपॉजिट कैन कॉज fibrinoid membrane on the lens surface. Complicated cataracts may be seen as a result of thickened lens capsule, altered membrane, and the use of topical corticosteroids. So ये तीन वजूहत हैं जिससे आपका कैटरेक्ट बन जाता है. और ये कैटरेक्ट क्योंकि सेकेंडरी है कैटरेक्ट, तो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन है तो इसलिए हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट कहते हैं. सो पोस्टीरियर सेगमेंट में जो है आपकी जो फाइंडिंग्स है उसमें हमारे पास आता है डिस्क ऑप्टिक डिस्क या उसका डीमा, यानी कि पोस्टीरियर यूवेइटिस या जो कोरोइडाइटिस और रेटिनाइटिस की हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से जो है ऑकुलर क्या फाइंडिंग्स होंगी. उसमें ऑकुलर फाइंडिंग्स में डिस्क एडीमा, मैकुलर एडीमा, रेटिना की वेस्कुलाइटिस, पेरिवेस्कुलर एक्सुडेट्स, फोकल या डिफ्यूज कोरोइडाइटिस या रेटिनाइटिस, स्नो बैंकिंग, tractional detachment, rhegmatogenous retinal detachment, and retinochoroidal atrophy, choroidal and retinal neovascularization. So a long list of manifestations resulting as a result of a posterior uveitis. तस्वीर में देखें तो ये देखें कि फोकल आपका ये कोरोइडाइटिस का एक पैच है, वाइट पैच आपको नजर आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि डिस्क जो है एडिमेटस होगी हुई है. इस तस्वीर में देखें दिस इज एन एंजियोग्राफी ऑफ द आईबॉल एंड नॉर्मल वेसल्स जो होती हैं वो दे शुड नॉट बी लीकिंग. लेकिन इसमें अगर हम देखें तो रेटिनल वेसल्स जो हैं वो कई जगहों पे आपको जो फजी नजर आ रही है और ये हेजी बॉर्डर नजर आ रहा है वो इस वजह से वेस्कुलाइटिस की वजह से देयर इन्फ्लेम्ड वेसल्स एंड दीस वेसल्स इन्फ्लेमेशन आर कॉजिंग लीकेज ऑफ द डाई इनटू द into the retinal layers.
अगेन इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली सेनोसिटी ऑफ मैकुलर एडीमा, ये आपकी ऑप्टिक डिस्क है, दिस इज एफएफए के अंदर देखिए ये डिस्क है, लेकिन मैकुला का जो एरिया है उसमें अगर आप गौर करें तो उसमें लीक कर रही है डाई बाहर की तरफ। क्यों लीक कर रही है? तो इसमें अगर हम देखें इसमें ये नॉर्मल है फोबिया, ठीक है, ये थोड़ा डिप्रेशन जो है ये फोबिया का, ये मैकुलर रीजन नॉर्मल है, लेकिन इसमें आपको ये जो हाई कहते हैं हाइपर डेंस जो है ना, बल्कि हाइपोडेंस जो ये एरियाज नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे इन्फ्लेमेशन की निशानी है कि यहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन, जो जितना स्ट्रक्चर थिक होगा उतना उसमें ये है ना कलर, ये होती है वैसे नॉर्मल कलर्ड है, लेकिन इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में भी अगर देखें तो जो आपको जो व्हाइटिश एरिया जितना है वो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कोई सॉलिड स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा थिक होगा उतना ज्यादा वो व्हाइट होगा, और जितना वो डार्क होगा तो इट मींस कि यहाँ पे कोई फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है। तो सो leakage of fluid in the foveal area causing the inflammatory and edema, और inflammation में आप देखें कि ये elevated भी है, तो ये ओसीटी के अंदर आपको ये देख सकते हैं कि मैकुलर एडिमा है ये। अगेन मल्टीफोकल कोलिडाइटिस, छोटे छोटे आपको बहुत सारे मल्टीफोकल पैचेस नजर आ रहे हैं जो कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में पोस्टीरियरली जो है वो पाए जाते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा था स्नो बैकिंग या स्नो बॉल्स, इसमें आप ये देखें कि ये जो छोटे छोटे आपको व्हाइटिश ओपेसिटीज नजर आ रही है, ये फ्लोट कर रही है विद इन द विट्रस कैविटी के अंदर, और विट्रस कैविटी में लेकिन उनकी पेरेंट्स बिल्कुल एक स्नो बॉल की तरह होती है, तो सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम स्नो बॉल या स्नो बॉल ओपेसिटीज। ये पोस्टीरियर यूवेइटिस में पाई जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं डिटेल्ड और काफी लंबी लिस्ट है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाता, लेकिन इसमें आप देखें कि हमारा मेन मकसद क्या है कि देयर इज सर्टेन सेट ऑफ डिजीजेस कि जिसको हमने रूल आउट करना है, जिसमें आपकी जो है जिससे मैंने कहा था कि इट मे बी इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, या ड्यू टू ट्यूमर या कार्सिनोमा या कोई मेलन किसी और वजह से भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा सारा जो डिफरेंट टेस्ट है वो डिफरेंट डिजीजेस के इन्फेक्शियस में खास तौर से है, क्या एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या आपकी ये हो गई इम्यून रिलेटेड डिजीजेस हो गई हैं, क्रॉन्स अल्सरेटिव अगेन ऑटोइम्यून डिजीज है, बेशर डिजीज, सिफिलिस 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 की एक लंबी लिस्ट है क्योंकि सिफिलिस बड़ा कॉमन है, लाइम के लिए है, सार्कोइडोसिस के लिए, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए। सो ये ये आपकी सारी जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस है वो एम्फसाइज कर रही हैं टुवर्ड्स अ सर्टेन सेट ऑफ डिजीजेस के, उनको रूल आउट करने के लिए कि कोई वो प्राइमरी कॉजेटिव फैक्टर्स दिए हैं, क्योंकि ट्रीटिंग द यूवेइटिस इटसेल्फ अलोन वुड नॉट बी सफिशिएंट इनफ, और उसकी वजह से रिकरेंस होती रहेगी जब तक कि आप इनमें से जो भी पॉजिटिव फैक्टर था उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे। Finally, the complications. The complications अगर if you do not treat the uveitis and it remains for a long term या repeatedly हो रहा है और chronic stage में चला गया तो it may cause certain complications within the eyeball, जिनमें glaucoma, inflammation can cause a rise in the intraocular pressure, and if untreated it can lead to a permanent loss of the vision. Cataract जिससे मैंने बताया can be as a result of inflammation itself or as a result of long term usage of steroids to control the inflammation. So detached retina क्या है जी? Retina can be detached from the eye as a result of inflammation, और जिसमें हम इसको कहते हैं exudational, और या it can be as a result of attraction जिसको हम dermatogenous retinal detachment कहते हैं। Macular edema की हमने बात की है कि accumulation of fluid in the macula, वो भी हो सकता है, it's a complication। posterior सैनिकी की हमने बात की, आइरिस जब स्टिक कर जाता है लेंस के साथ, वो उसकी वजह से हम, ये डिले ट्रीटमेंट्स की वजह से होता है कि अगर आपका यूवेइटिस कंटिन्यूस कुछ अरसे तक चल रहा है। बैंड केराटोपैथी इज एसोसिएटेड विद अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग क्रॉनिक यूवेइटिस, ठीक है, ये कॉर्निया के अंदर होती है, केराटोपैथी है कॉर्निया के अंदर होती है, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ कैल्शियम ऑन द सेंट्रल कॉर्निया। तो ये अगर लॉन्ग टर्म यूवेइटिस, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन चलती रहेगी कॉर्निया के जो है उसके अंदर बैंड केराटो ये प्रोड्यूस हो सकती है। एंड फाइनली permanent blindness can occur as a result of chronic uveitis. So these are the complications that can occur. And thank you very much. I think this, yeah, that was the last slide. So any questions? जी जनाब, कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइएगा।
क्यों जी, कोई क्वेश्चन किसी का अगर कोई? So there is no question in the chat box, and just 2 minutes left. मेरा ख्याल है समझ आ गया सारों को। बीच में मेरे ख्याल है एक दो बंदों ने किया था, हाथ उठाए थे। अगर मतलब इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। देख सर लें उनको अगर। अगर पूछना होगा तो आई थिंक हाँ चैट बॉक्स में जैसे ही आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चले, मैं अभी बैठा हूँ, फिर देख लेते हैं। बस मेरा ख्याल है इसके बाद ना मेरे एक टॉपिक रह गया यूवीआइटिस का, और आई थिंक दैट विल बी मेनली ऑन एम्फसाइज्ड ऑन द ट्रीटमेंट of uveitis, और उसके बाद फिर डॉक्टर उज़मा जो है, आई थिंक दैट शी विल स्टार्ट हर lectures on some other topic। ठीक है जी। आई 3 मोर, ये क्या है? जी चैट में आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम, वी कैंट हैव यू सर, लास्ट पिक्चर इज वेरी नाइस, व्हाट इज पोलियोसिस कोपे, व्हाट इज कोपे नोड्यूल्स? जैसे मैंने बताया, कोपे नोड्यूल्स जो है ना आपके डिफरेंट आइरिस के ऊपर, जैसे मैंने कहा इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं ना, द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उसमें एक बुसाका नोड्यूल्स है, कोपे नोड्यूल्स है। अगर वो आपके बॉर्डर पे पाए जाते हैं तो वी कॉल देम कोपे नोड्यूल्स। बेसिकली दीज आर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्यूमुलेशन आइरिस के डिफरेंट जो है। पोलियोसिस जो है ना वो एक सिस्टेमिक डिजीज है, और उसकी वजह से फिर आपके अंदर पोलियोसिस, सॉरी आई थिंक, जो मुझे याद नहीं रहा, लैशेस की जो ना कलरेशन है मेरा ख्याल है, या लॉस ऑफ लैशेस या कलरेशन ऑफ लैशेस जो होती है ना, वो पोलियोसिस है। मैं स्कोलियोसिस समझ रहा था। आई थिंक पोलियोसिस दैट इज आईओपी डिक्रीज। जिससे मैंने कहा, देखें सिलरी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? एक्वस बनाना। कोई भी स्ट्रक्चर जब इन्फ्लेम्ड होगा तो वो अपना फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन के साथ उस चीज का फंक्शन कम हो जाता है। तो सिली बॉडी एक्वस की प्रोडक्शन कम हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ आयराइडोसेक्लाइटिस। जब सेक्लाइटिस या सिली बॉडी की इन्फ्लेमेशन होगी तो ऑटोमेटिकली एक्वस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ड्रेनेज नॉर्मल हो रही है लेकिन प्रोडक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से आई बॉल का प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल से कम हो जाएगा। और इसका हमें पता कैसे लगेगा कम होगा? व्हेन वी कंपेयर इट विद द नॉर्मल या अदर आई। अगर अदर आई नॉर्मल है, उसका प्रेशर और इसके प्रेशर में कम है, थोड़ा सा कम होगा, बट ये अर्ली स्टेजेस के ऊपर है। लेकिन चूंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब रिलीज हो जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब एक्वस के अंदर आ जाते हैं, यही इन्फ्लेमेटरी सेल्स कई दफा आपके ड्रेनेज वाला जो एरिया है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क, इसको जाके मैकेनिकली ब्लॉक कर देते हैं, या इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर देते हैं ट्रेबिकुलर मेशवर्क में, जहां से एक्वस ने ड्रेन होना है। और इसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपका सेकेंडरी राइज होना शुरू हो जाता है प्रेशर। सो वेरी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कम हो जाता है, नॉर्मल भी रह सकता है। अगर सेक्लाइटिस नहीं है, सिंपल आयराइटिस है और ब्लॉकेज भी नहीं हो रही, बहुत लोकलाइज्ड एरिया है, तो फिर आपको नॉर्मल रहेगा। और फिर राइज होगा कि जब ट्रेबिकुलाइटिस होगा या मैकेनिकली ब्लॉकेज हो जाएगी। Interrupt you, sir. Sorry to interrupt you. So lecture time is over now. चलो जी, ठीक है जी। Okay, चले जी, खुदा इंशाल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।